पहले एक इंग्लिश पोएम है, उससे मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। इसको मैंने नाम दिया है पेपर टाउन। तो सबसे पहले पेपर टाउन एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे जो लोग मैप्स बनाते हैं वो मैप्स के अंदर एक ऐसा कोई फेक टाउन बना देते हैं जिससे कि दूसरे लोगों को पता रहे कि ये जो मैप बनाया है ये इस इंसान ने बनाया है, फॉर लाइक एन आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। सो इसको मैंने नाम दिया है पेपर टाउन, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। Could I manage to find a paper town and hide away? Stay in it till I cease to exist and begin living. Actually love living. And maybe then the paper town won't be just a paper town. It would be a place I'd call home. A place where I found myself. A place where I fell in love. I stumbled upon one such. A town where those cafes at the end of the street used to smell like a strong cappuccino. Those cafes where I used to sit with a notebook and a pen and try to straighten up the string of my thoughts. However, people were still chattering and a bunch were fighting outside the window. So with all that background noise, all the clutter in my mind stayed, and it was wanting to breathe. So one day I just decided to go for a hike in the paper town and stayed with the tall trees, the flowers, the earth, butterflies and the smell of the pine. So now I want you to imagine this if you can, okay? And I stayed with the tall trees, the earth, the flowers, butterflies and the smell of the pine. The sound of the waterfall and the texture of dampened rocks beneath the feet. The sun had just begun to rise. The sky colored in the shades of scarlet, red and yellow with a tint of orange. And the waterfall shone like flakes of pearl. And the dappled light from the canopy of trees reached me through the fiber of my vanilla shirt. To caress and embrace my soul, I bent down to fetch the parchment paper from my bag and sat on the saturated rock. And started writing. Writing, drawing, journaling, pouring everything that my heart was feeling. My inner world was tended, and all parts of me were welcome there. The good, the bad, the beautiful, and the ugly. And just when I was about to finish, a gorgeous blue butterfly sat on my shoulder, and a tickle went down my spine. She made her way to my finger, and I was looking at her, enthralled. The fine perfection of a blue wing and the silk black. In that single moment, I witnessed how still everything is, how peaceful every moment is in nature's presence. And that's where, and that there's always a place you're meant to be, which is here and now. I found my paper town, my home. I call it Rehnuma. Rehnuma means a guiding light. So if someday I come across a being searching for their paper town, I'd smile, for I know how the buried stories would then be undone, how the broken pieces of heart would then be put together with gold. So there's this Japanese technique called kintsugi. उसके अंदर जब भी कोई utensil टूट जाता है, so they mend it with gold के flakes. So it looks very beautiful. So that's why how the broken pieces of heart would then be put together by gold, and how liberating it would be to sit in the knowing of unconditional love. Thank you. Okay, so I have one more which I wrote एकदम सुबह 9 बजे. मैं 4 बजे उठने वाली थी but नहीं उठी. और like as Anjali said, जिंदगी से इश्क करो, पता चलेगा दर्द क्या है. So yes, इसका कोई नाम नहीं है. तो आज जरा इस मुसाफिर दिल ने चाहा कि कुछ गुफ्तगू तुम सबसे भी कर ले. हमारे पास एक कहानी है, एक कहानी जो शायद आप सबकी है और शायद नहीं भी, पर फिलहाल हमें ये पता है कि ये कहानी हमारी है. बचपन से ना मेरा बड़ा मन था घूमने जाने का, और 6 साल में घूमने जाना अपने घर से बाहर निकलना लगता था. गली में जाकर क्रिकेट खेल लिया, बैडमिंटन या छुपन छुपाई, उसी में दिल गार्डन हो जाता था. फिर थोड़े बड़े हुए तो पता लगा घूमने का मतलब है दिल्ली से बाहर जाना. वो भी हुआ,
दिल्ली से बाहर गए नानी के घर तक। और बड़े हुए तो ये मुसाफिर दिल माना नहीं, तो घूमे पर सबके साथ। और फिर उसके बाद वेकेशंस के बाद एंड डेस्टिनेशन तो आखिर में घर ही होता है ना, तो वो था एंड डेस्टिनेशन घर हो जाता। उसके बाद और बड़े हुए तो घर दूर लगने लगा, बहुत दूर। शायद हम ही घर से दूर आ गए थे या घर घर ही नहीं रहा था, क्योंकि अब वो मुस्कान नहीं थी। 2 पल बैठकर तुम कैसे हो पूछने के लिए किसी के पास वक्त नहीं था। अब घर के उन कोनों में वो बचपन की खिलखिलाहट नहीं थी। एक गाना है, कहते हैं वक्त की बातें हैं इन्हें गुजर जाने दो, शायद ज्यादा ही गुजर गई। वो चहकती गलियां अब सुनसान हो गई थी। वो हर शाम के ठीक 5 बजे तारुशी नीचे आजा 10 लोगों के चिल्लाने की आवाज अब ना रही थी। अब शायद वो जो बचपन के दोस्त थे देखते थे आते जाते, बट हाय हेलो भी नहीं होती थी। तो ये घर सा कैसे रहा, पर ठीक ही है। धीरे धीरे सब बड़े हो ही जाते हैं और चीजें बदलना तो वक्त का दस्तूर है, और शुड आई से नेचर्स लॉ। इसकी भी आदत हो ही जाती है। सब आहिस्ता आहिस्ता शांत होने लगता है और फिर एक दिन इस शांति की भी आदत हो जाती है और ये भी खूबसूरत लगने लगती है। और फिर बिना किसी दस्तक जिंदगी की किताब में एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है, जिसके नए किस्से होते हैं, नए यादें और नए लोग, और जिंदगी चलती जाती है, बस चलती ही जाती है। हम रोते हैं, हंसते हैं, दिल टूटता है, वापस से प्यार भी होता है। सब खूबसूरत है, बस एक ही कमी है। बचपन खत्म होते ही एक दौड़ शुरू हो जाती है, जिसमें भाग हम सब रहे हैं। 10th खत्म, बस 10th कर लो, उसके बाद मजे हैं। उसके बाद 10th के बाद आई 11th 12th कर लो, फिर मजे हैं। 10th खत्म हुई, 12th खत्म हुई, फिर कॉलेज, बैचलर्स के बाद मास्टर्स। पर मैंने सुना वो तो बैचलर्स के बाद जॉब कर रहा है, मुझे भी जॉब करनी है। कोई किसी के पीछे तो कोई किसी के आगे, सब फर्स्ट आना चाहते हैं। पर शायद सबकी मंजिल एक नहीं है, तो सब एक ही रेस में फर्स्ट क्यों आना चाहते हैं? शायद यहीं से अपना रास्ता बनाने की भी शुरुआत होती है। तो आखिरी में बस यही कहना चाहूंगी कि तुम सब यहीं खड़े हो, भाग भी रहे हो, अभी भी बैठे हो, तो दिमाग में 1000 चीजें चल रही होंगी, पर जरा सुनो, तुम यहीं खड़े हो तो फिर जी क्यों नहीं रहे हो?